Good morning, students. In previous lecture, we discussed about the choose the correct option, filling the blanks, true, false. Now we start the one sentence answer of this chapter. In this, our first question is, which is the unit of length used to measure the thickness of the scale? जो स्केल की थिकनेस को मेजर करने के लिए हम कौन सी यूनिट ऑफ लेंथ यूज़ करते हैं? द थिकनेस ऑफ अ स्केल इज measured in millimeter. The thickness of a scale is measured in a millimeter. Okay. Now, next question. Give one example of rectilinear motion. One example of rectilinear motion. Answer is motion of a stone falling freely फ्रॉम अ सर्टन हाइट. यदि कोई हाइट से हम एक स्टोन को गिराते हैं फिर उसको हम देखते हैं तो वो रेक्टिलिनियर मोशन करता है. मोशन ऑफ अ स्टोन फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम अ सर्टन हाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन. मोशन ऑफ अ स्टोन फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम अ सर्टन हाइट is an example of a rectilinear motion. Now next, give an example of circular motion. Give an example of circular motion. The motion of the hands of a clock. जो clock की hands होती हैं, the motion of the hands of a clock or a wheels of a cycle or a wheel of a cycle is an example of circular motion. The motion of the hands of a clock और द व्हील्स ऑफ अ साइकिल, साइकिल के व्हील्स और हैंड्स, क्लॉक के हैंड्स, उनका मोशन वो एग्जाम्पल है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सर्कुलर मोशन. वो सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है. नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट काइंड ऑफ मोशन इज परफॉर्म्ड बाय बॉल रोलिंग ऑन ग्राउंड. जब ग्राउंड पर बॉल रोलिंग हो रही है वो किस टाइप का मोशन होगा? व्हाट काइंड ऑफ मोशन इज परफॉर्म्ड बाय बॉल रोलिंग ऑन अ ग्राउंड? आंसर इज ए बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड परफॉर्म बोथ सर्कुलर एज वेल एज रेक्टिलिनियर मोशन भी करता है. both circular as well as rectilinear motion. Now next one, what kind of motion is performed by the hands of a clock? जो हैंड्स ऑफ अ क्लॉक किस टाइप का मोशन करते हैं? जो हैंड्स ऑफ अ क्लॉक सर्कुलर मोशन भी करती है एज वेल एज अ पीरियोडिक मोशन, बिकॉज मोशन अगेन एंड अगेन रिपीट होता है. मोशन विल रिपीट अगेन एंड अगेन, सो इट्स डन two types of motion, circular motion as well as a periodic motion. Okay, the hands of a clock perform circular as well as periodic motion. Now next one is, which device will you use to measure the length of a given line segment? Which device will you use to measure the length of a given line segment? Answer is, to measure the length of a given line segment we will use the 15 centimeter scale of the compass box. To measure the length of a given line segment we will use the 15 centimeter scale of compass box. Now we completed the one sentence. Now we start the 3-4 sentence answer of this chapter. Now start 3-4 sentence answer. Our first question is, we cannot measure the length of an object accurately by using handspan, hand and footstep. हम जो accurate length है वो क्यों measure नहीं कर सकते by using handspan? होते हैं, किसी के बड़े होते हैं तो वो वरी होते हैं, इसलिए वो जो accurate length है वो हम measure नहीं कर सकते. We cannot measure the accurate length. Okay. Answer, the length of a handspan or a footstep vary from person to person. The length of a handspan or a footstep vary from a person to person. Some people have a longer hands and feet than others. कुछ के
बड़े होते हैं दूसरों से, एंड हैंस द मेजरमेंट ऑफ सेम ऑब्जेक्ट व्हेन टेकन बाय डिफरेंट पीपल विल बी डिफरेंट। जब जो मेजरमेंट है सेम ऑब्जेक्ट्स का डिफरेंट पीपल्स लेंगे तो वो डिफरेंट ही होगा, क्योंकि किसी के हाथ छोटे हैं, किसी के बड़े हैं। हैंस वी कैन नॉट मेजर द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट एक्यूरेटली। इससे जो लेंथ है हम एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते किसी ऑब्जेक्ट की बाय द हैंड स्पैन, हैंड एंड फुट स्टेप, क्योंकि सबके हाथ पैर जो भी हैं वो सेम नहीं होते, किसी के लॉन्ग होते हैं, किसी के शॉर्ट होते हैं। ओके, now next one question is, why is standard unit of length needed? Why is standard unit of length needed? Answer is, in ancient time people were using fingers, handspan, hand and footstep to measure length. In ancient time people were using fingers, handspan, hand and footstep to measure length. The result to measure the length could be different as length of your hand span. The result to measure the length could be different as the length of your hand span, and that of your friend may not be the same. आपके फ्रेंड की भी वो सेम नहीं होगी. The हमेशा सेम रहते हैं, ठीक है, क्योंकि उसकी मीटर्स में उसको मेजर करते हैं, सेंटीमीटर्स में मेजर करते हैं, तो वो स्टैंडर्ड यूनिट है, एसआई यूनिट्स हैं, वो कभी भी सेम नहीं रहते, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या है, सेम है. इसीलिए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ नीड होती है, क्योंकि जो नॉन स्टैंडर्ड है वो हम प्रॉपरली उसको मेजर नहीं कर सकते, एक्यूरेट मेजर वो नहीं आएगा. स्टैंडर्ड यूनिट को हम लेते हैं, जैसे एसआई यूनिट्स को हम लेते हैं, मीटर सेंटीमीटर्स का हम यूज़ करते हैं, तो जिससे हमारी जो लेंथ होगी वो एक्यूरेट होगी और ऑल ओवर द वर्ल्ड वो लेंथ सेम रहेगी. ओके, नाउ स्टार्ट अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. थर्ड वन इज हाउ विल यू मेजर द लेंथ ऑफ अ पेंसिल यूजिंग अ स्केल whose जीरो एंड इज ब्रोकन. यदि जो स्केल है मेरे पास उसका जीरो एंड वो ब्रोक हो गया है, अब हम लेंथ है जो पेंसिल की वो कैसे मेजर करेंगे, तो हम वो फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे, राइट. तो देखो, टू मेजर द लेंथ ऑफ अ पेंसिल बाय द हेल्प ऑफ अ स्केल whose जीरो एंड इज ब्रोकन, एंड वी विल प्लेस वन एंड ऑफ द पेंसिल एट मार्क ऑफ वन ऑन द स्केल. अब जो पेंसिल है हम उसको वंस जो होगा उस पर रखेंगे, फिर वी विल नोट द मार्क ऑन द स्केल ऑन विच द अदर एंड ऑफ द पेंसिल फॉल्स. जहाँ पे पेंसिल का दूसरा एंड है उसका मेजरमेंट हम लेंगे, फिर उसको हम नोट डाउन करेंगे. फाइनली वी विल सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम द रीडिंग. जो फाइनली होगा उसमें से हम क्या करेंगे, वन माइनस कर देंगे, क्योंकि पहले जीरो वाला पॉइंट था नहीं, इसलिए 1 सेंटीमीटर हम उसमें माइनस कर देंगे. To measure the length of a pencil by the help of a scale whose zero is and is broken, we will place one end of the pencil at the mark of 1 on the scale. So after that, we will note the mark on the scale on which the other end of the pencil falls. And finally, we will subtract from 1 the reading and get the real length of the pencil. Okay? तो इस वीडियो में मैंने 3 क्वेश्चंस कवर अप करे हैं. 3 क्वेश्चन हमारे 3-4 सेंटेंस मैंने कवर अप करे हैं, 1 सेंटेंस कवर अप करे हैं. नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे.